ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ। 25 ਮਈ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਲਗਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇसी ਕੈਂਪ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਰਮਨ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫॉर द ਲਰਨਰਸ, ਫॉर द ਬਿਗਨਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਔਰ ਮੁੰਨੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰ ਜਰਮਨ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए, आप सबको कहा हुआ है कि पंजाबी गुरमुखी लिपि है, तो आपने सबने सिर ढकना है। मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चों के, काफी सारे शिक्षार्थियों के, कैंपर्स के सिर ढके ही नहीं हुए। गो ग्रैब योर स्कार्फ्स, हरी अप अपने स्कार्फ्स, अपने दुपट्टास लेकर आएंगे जल्दी। सर ढक के बैठ। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आइए आज शुरुआत करते हैं नाम सिमरन से। सब हाथ जोड़ लेंगे। 5-7 टाइम्स मैं वाहिगुरु बोलूंगा, फिर आपने भी साथ साथ बोलना है। जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु,
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, सो कैंपर्स, प्यारे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल फीलिंग? सारे किस तरह ਦਾ महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? वेरी गुड। बैटरीज सारे दी तेज है या सेल पवाने हैं? ठीक है, सारे दी एक्टिव बैटरीज है। फिर आज असी की करना है लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 8, राइट? लेसन नंबर 7 और 8 करना है। होमवर्क किस किसने देखा सी कल? किस किसने होमवर्क देखा सी वीडियोस? ईमानदारी नाल सच बिल्कुल दसना है। हाँ, अब नहीं किया ऐसे सिर हिल रहा है ना, नहीं किया, क्यों नहीं किया? कौन करेगा आके? जैसे जैसे लेसन्स आगे बढ़ते जाएंगे, हम पंजाबी में आगे बढ़ते जाएंगे, नए शब्द सीखते जाएंगे। अक्षर भी बस खत्म ही होने वाले हैं हमारे पास। ये नए अक्षर जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद नए नए शब्द आएंगे, नई नई लाइंस आएंगी, नए नए रूल सीखेंगे। फिर लेसन और टफ होता जाएगा। पर टफ पता है किसके लिए होता जाएगा? गगनवीर हाँ जी, जी, मैं हाँ एक जी बेनती भाई। करना चाहांगी जी। हाँ जी, मैं एक बेनती करना ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। जी हाँ जी, ठीक है जी, करो एक बार ते फेसबुक पे चेक करके दसो मैं आ गया स्पॉटलाइट पे नहीं। सारे अपनी नोटबुक्स रेडी रखो इतनी देर जब तक वो काम कर रहे हैं प्रधान साहब। हाँ जी वाहिगुरु, मैंने यस नो कर देना कि हो गया काम या स्पॉटलाइट ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ या नहीं। ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। फेसबुक ਤੇ, क्योंकि फेसबुक ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਪੌਟਲਾਈਟ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਸਬੁਕ ਖੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, और चैट्स अगर इनेबल है तो मैंने दसो। नो, आई एम नॉट ऑन स्पॉटलाइट। हाँ तो भैन जी मैं नहीं है स्पॉटलाइट तो एक बार दोबारा करना पड़ेगा था। बस पता चल गया मैंने, नो सारी दुनिया ही नो लिख देगी क्यों? लेसन नंबर 7 करना है आज असी, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8। जिमें जिमें जैसे जैसे हम पंजाबी में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, लेसन्स और टफ होते जाएंगे। बट टफ उनके लिए होंगे जिन्होंने, किसके लिए टफ होंगे? जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, सिंपल। अब जिन्होंने होमवर्क किया है, जिन्होंने होमवर्क किया है उनके लिए लेसन टफ होंगे ही नहीं। बट क्योंकि 2 लेसन्स आपको मिल रहे हैं रोज करने के ताकि हम पंजाबी अच्छी तरह सीखें, सो इट्स योर मॉरल ड्यूटी कि आपको लेसन्स होमवर्क करना है। आधे लिख रहे हैं मैं स्पॉटलाइट पे आ गया हूँ, आधे लिख रहे हैं नए नहीं आया हूँ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਤੇ ਹੋ ਹੁਣ। ठीक है जी, मैं नहीं छेड़ांगा ऑन स्क्रीन में बिल्कुल। हाँ जी, तो आइए देखें आज कौन कौन से नए अक्षर सीख रहे हैं हम। सीखने हैं तो फिर होमवर्क क्यों नहीं किया? सीखने हैं तो सबने। चलो आइए देखें, हम वही लिखेंगे हिंदी, हिंदी पंजाबी। कल हमने देखा कि पहली लाइन उड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा, ये 5 अक्षर कर लिए हमने पूरे। उसके बाद कक्का खक्का गग्गा कग्गा अंगा, जिसको हम गंगा 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 गंगा, ये सेकंड लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड लाइन में हमने क्या क्या कर लिया? चच्चा कर लिया, फर्स्ट लेटर कर लिया।
फर्स्ट अल्फाबेट हैज बीन डन, पहला अखर ਅਸੀਂ कर चुके हैं। तीसरी लाइन दा चच्चा। आज हम दूसरा अक्षर करेंगे उसका, देखते हैं क्या है। च के बाद क्या आता है? छ। फिर आता है ज। ज से एक और मिलता जुलता हम करेंगे ज। ध्यान से करना पड़ेगा। और होमवर्क मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हमारे पास 2-2,500 कैंपर्स हैं, यानी 2-2,500 लर्नर्स हैं ग्रुप में सीखने के लिए, हमारे पास मोर देन 8 ग्रुप्स हैं, अगर इतने सारे कैंपर्स लर्नर्स हैं तो उनमें से हार्डली 500-600 होंगे जो वाकई सीखना चाह रहे होंगे। मैं उन 500-600 को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क वाइजली, अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं। नहीं तो फिर ये आपका भी टाइम वेस्ट है, सिखाने वाले का। अगर आप वाकई कुछ सीखना चाह रहे हैं, जरूर कंप्लीट योर होमवर्क ऑन दिस चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, ताकि आपको लेसन्स मिल जाएं टाइमली और आप काम कंप्लीट कर सकें। अच्छा देखेंगे कैसे बनाना है। ड डमरू वाला बनाना आता है हमें हिंदी में? आता है बनाना ये वाला ड डमरू? बस इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, गोल बना देंगे, ठीक है, और बीच में एक लाइन डाल देंगे, दैट्स इट। इसको कहते हैं छच्छा। ड डमरू। देखो दोबारा बनाना सीखते हैं, इधर देखेंगे। ड डमरू बना के उसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया और एक लाइन डाल दी, ओके। ऊपर भी लाइन डालनी है। इसको हम कहते हैं छच्छा। छच्छा। सारे नाल नाल बोलते रहेंगे ताकि बनाना भी आंदा रहे और बोलना भी आंदा रहे। छच्छा। हेड कवर्स में देख रहा हूँ फिर सिमरन हटते ही हेड कवर्स हट गए हैं। दिस इज वेरी सैड। पुट अप योर हेड कवर्स ऑन योर हेड्स। सारिਆਂ ਦੇ हेड कवर होने चाहिए ਹਨ। स्कार्फ्स ले लो अपने। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा, फिर मैं नाम लाऊंगा, तुसी कहोगे हमारा नाम ले लिया कि हेड कवर नहीं है। सो हैव योर हेड कवर्स, हरी अप। गुड। मदर्स आर सो केयरिंग। अच्छा, उसके बाद हमने करना है जज्जा। जज्जा देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। हम जज्जा कैसे बनाते हैं? ज कैसे बनाते हैं? ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे बनाते हैं हिंदी में, है ना। बस ये वाला कर्व हटा दो, ये वाला कर्व मत बनाओ, और इसको यहां से ऐसे कर दो। दोबारा सीखें। हमने ज ऐसे बनाया, ऐसे। इस कर्व को यहां से हटा दो, इतना हटा दो, ऐसा सोच लो, इतना हटा दो और यहाँ पे एक बॉल बना दो। ये ज बन गया पंजाबी का जज्जा। अब दोबारा बनाना सीखते हैं। ऐसे बनाएंगे, ऐसे, और यहां से ऐसे, ऊपर लाइन लगा देंगे। समझ आई? समझ आ गई? यस और नो? वेरी गुड, वेरी नाइस। इसको हम कहते हैं, ये कौन सा अक्षर है? जज्जा। जज्जा साउंड किसकी देगा? ज की। जज्जा ज की साउंड देगा। उसके बाद हमें सीखना है ज। अब जैसे हिंदी में क्या होता है, ये देखिए, ये ज है तो नीचे बिंदी लगा देंगे तो ज बन जाएगा। पंजाबी में भी सेम होता है, ज और ज से मिलता जुलता ज। ये है जज्जा। अच्छा, आपको मैंने बताना था, एक हम पैर पे बिंदी वाला अक्षर पहले भी कर चुके हैं, शशा। सस्से पैर बिंदी श बोले। आपको याद है हमने किया था शशा? याद है? अच्छा, जो शशा किया था ना हमने, और ये अब जज्जा कर रहे हैं, ऐसे जो हमारे पास 6 अक्षर आएंगे पैर पे बिंदी वाले, वो फारसी या उर्दू भाषा के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फारसी या उर्दू भाषा के कोई शब्द अगर हमने लिखने हो तो वो उसमें यूज होंगे, जैसे फैज, अखबार, गैबुल। जब जब ये फारसी के शब्द यूज करे जाएंगे, अजराइल, तब हम ज, श और पैर पे बिंदी वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जज्जा, दिस इज जज्जा, ज। इन शब्दों में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? यू कैन आस्क योर डाउट इफ यू हैव एनी इशू इन दीज लेटर्स। इन अक्षरों में है किसी को कुछ परेशानी? कोई नहीं। साथ साथ नोट करेंगे। इजी लग रहे हैं लेसन्स या नहीं?
इजी है। अब इजी उन लोगों को लगेंगे जो होमवर्क रोज करेंगे। अब होमवर्क ही नहीं करोगे तो फिर ऐसे रोते ही रहेंगे हम, यार इतना मुश्किल है ये तो, ये हमसे नहीं हो रहा, इतनी महंगी लैंग्वेज है ये तो। ऐसे करते रहेंगे फिर तो होगा ही नहीं। हमें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज साइकिल चलानी सीखते हैं जब हम, तब क्या करते हैं, रोज उठा लेते हैं साइकिल और उसे पैडल मारने शुरू कर जाते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, करते ही रहते हैं प्रैक्टिस। छोड़ देते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो आएगी नहीं। रोज करते रहते हैं प्रैक्टिस, गिर गिर के एक दिन समझ आ जाती है कि साइकिल कैसे चलानी है। जब चलानी आती फिर तो दोनों हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं कई लोग। पहले वो टायर लगाते हैं, सपोर्टिंग टायर्स लगाते हैं, फिर एक टायर हटाते हैं, फिर दोनों टायर हटाते हैं, फिर गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, फिर एक दिन चलानी शुरू कर जाते हैं। ये सपोर्टिंग टायर लगे हुए हैं आपको, बोर्ड से देख के लिखना, सर हैं आपके पास, ये सपोर्टिंग टायर है। एक दिन कैंप खत्म होगा, सपोर्टिंग टायर हट जाएंगे, फिर आपको हटाना पड़ेगा, गिरेंगे पड़ेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, फिर एक दिन आ जाएगी। पर उस गिरेंगे उठेंगे के लिए ये सपोर्टिंग टायर का होमवर्क कौन करेगा? अगर करेंगे नहीं फिर तो गिरते ही रहेंगे, उठ ही नहीं पाएंगे। फिर कहेंगे ये तो साइकिल ही मनहूस है, जबकि साइकिल तो ठीक थी, है ना? प्रैक्टिस तो हमें करनी थी। समझ आगे आगे बढ़े। ये 7th जो हमारा लेसन था ना, ये कंप्लीट हो गया। 7th लेसन में हमने 3 अल्फाबेट सीखे थे, छच्छा, जज्जा और जज्जा। अब हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड लाइन में हमने क्या क्या सीख लिया, इधर देखेंगे, इधर लिखता हूं। हमने सीखा चच्चा, अभी सीख लिया छच्छा, फिर सीख लिया जज्जा। चज्जा हम पहले सीख चुके हैं अगर आपको याद हो तो। झ झंडा, याद है आपको, ये सीखा था हमने। वी बनाते हैं नीचे 2। अब एक रह गया यहाँ पे लेटर, एक अल्फाबेट हमारे पास रह गया। ये भी खाली होता है, पर गुरु साहब ने इसको भी भर दिया है। जैसे कल था ना गंगा, गंगा ग का नियर वर्ड था, ये ज का नियर वर्ड है। देखते हैं, ये देखो ज का नियर वर्ड। ये कैसे बनाएंगे, इसको हम कहते हैं अना खाली। ये अना खाली होता है ना, पर गुरु साहब ने खाली रहने ही नहीं दिया, खाली चीजों को भी भर देते हैं। देखेंगे हम क्या लिख रहे हैं। अब हमने क्या लिखना है, देखिए बनाना बहुत आसान है। ईड़ी बनाई थी आपने, ईड़ी ऐसे बनाई थी, ईड़ी याद है? ईड़ी ई की साउंड दे रही थी, बस इसके नीचे एक और डाल दो ऐसे, ठीक है? या फिर और इजी से समझ, हिंदी का ह बनाओ और एक स्लांटिंग लाइन डाल दो, ऊपर से कवर कर दो। इसको कहते हैं, वैसे तो मैंने क्लास में लिखवाया यैया, यैया। ये ज का नियर वर्ड होता है, ये ज का नियर वर्ड है, ज का नियर वर्ड है। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, देखो कैसे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था गंगा, आज पढ़ेंगे जंजा, जंजा बोलो, जंजा, सारे बोलेंगे। इसको प्रोनाउंस करना नहीं सीखेंगे तो फिर नहीं आएगा, सारे बोलेंगे जंजा, जंजा। पंजाबी पढ़ पा रहे हैं, ज को टिप्पी लगी है, जंजा। अब इसको और मॉडिफाई करते हैं, ऊपर बिंदी लगा देते हैं, जंजा। बोलिए, सब नहीं बोलते दिख रहे मुझे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर कैसे आएगी? फिर लास्ट में कहेंगे समर कैंप भी अटेंड किया, हमें तो आई नहीं पंजाबी। जंजा, जंजा। अब इसी को नेजल साउंड में कन्वर्ट कर देंगे, जंजा, न्या, न्या, न्या। पहले हमने बोला जंजा, फिर बोला जंजा, जंजा, और फिर उसके बाद बोल रहे हैं न्या, न्या। तो ये ज का नियर वर्ड है। जब गुरु साहब कहते हैं पाप की जंज ले काबलोत आया, जंज मतलब होता है शादी, बारात। तो जंज में गुरु साहब जंज ऐसे नहीं यूज करते, गुरु साहब यहाँ पे ये यूज कर लेते हैं, जंज। मंज कुचज्जी अम्मावन डोसड़े,
एक बाणी है कुचज्जी, उसमें गुरु अर्जन देव जी, गुरु नानक देव जी वाहिगुरु कृपा करें, यही यूज करते हैं। मंज ऐसे यूज करते हैं, ये ज के नियर वर्ड है, मंज कुचज्जी, ठीक है। या फिर गुरु साहब यूज करते हैं हों वारी वन्या खनिया वन्या, तो ऐसे यूज करते हैं वन्या। तो ये ज का नियर नियर अल्फाबेट है, ये ज का। तो कैसे प्रोनाउंस करना है? जंजा जंजा यंया यंया, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक हम और अक्षर करेंगे, इसको कहते हैं व। पंजाबी में व और यंया बिल्कुल सेम है, ये देखो ऐसे बनाया था, बस यही है वो, यही वो है, बस स्लांटिंग लाइन नहीं डालनी, ठीक है। हिंदी का ह, पंजाबी का व बन गया। वव्वा, इसनु कहंदे आ वव्वा। की कहंदे आ इसनु? वव्वा। की कहंदे आ? सारे बोलो वव्वा, ठीक है वव्वा। एक लास्ट सिखांगे असी डड्डा, ड सीखेंगे, ड ड। अगर आपने लेसन्स कर लिए होंगे तो आपको पता होगा। ड ड है डड्डा, देखो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। ड बनाना, 3 बनाया और नीचे से उसको गोल घुमा दिया, सिंपल। 3 बना के नीचे से गोल घुमा दिया तो ये क्या बन गया? डड्डा, डड्डा, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी हरी अप। हाँ जी, नोट कर लिया। आलस आ रहा है, बहुत नींद आ रही है, हाँ, बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये देखो हर एक का सिंह, ओ हो बड़ी नींद आ रही है, सारियां नु बड़ी नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है जी? नोट कर लिया? मैं इरेज कर दूं? करूं इरेज? चलो, ये सारे शब्द, सारे अक्षर हमें पहचान हो गई है। अब हम देखेंगे इनसे हम कौन कौन से शब्द बना पा रहे हैं। शब्द बनाने से पहले आओ एक बार मुहारनी लिख लें, वर्णमाला एक बार लिख लें, हम कहां तक पहुंचे हैं। सीरियल वाइज देखेंगे हम कहां तक पहुंचे हैं। तो आज हमने यहाँ पे न्या ये भी सीख लिया है। अब हम मुहारनी शुरू से देखेंगे, शुरू से देखते हैं। अब पूरा कंप्लीट करते हैं, कितनी लाइंस हम कंप्लीट कर चुके हैं आज तक। 6th डे आज। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हा हा, ये कंप्लीट हो गई है फर्स्ट लाइन। उसके बाद है कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ngंगा, जो ग का नियर अल्फाबेट है। उसके बाद हमने किया चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, न्या। इसके बाद हमने किया टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, ये भी कर चुके हैं। यहाँ पे एक रह गया बस, अब इसको छोड़ देते। देखो इतनी सारी, ऑलमोस्ट 4 लाइंस हैव बीन कंप्लीटेड। ये सीरियल वाइज मैंने लिखा है, आपने नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास 7 लाइंस है, तो 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 लाइंस वी हैव डन। 4th लाइन का बस लास्ट वाला अल्फाबेट रहता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारे अक्षर कर लिए हैं। कौन कौन से? मम्मा, शशा, रारा, जज्जा, और भी कोई किए होंगे तो मुझे ध्यान भी नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि सर तो होमवर्क अपना पूरा कर रहे हैं।
थत्था, ये देखो एक और आ गया ना, थत्था, ये हम पूरे कर चुके हैं। जो कग्गा, ngंगा, चज्जा, चच्चा, दद्दा, हाँ एक और है, दद्दा रह गया। तो हम देखेंगे out of 41 how much are we done with? 1 2 3 4 5 25 अल्फाबेट अभी तक हम कर चुके हैं। 25 कर चुके हैं हम। देखो कितनी जल्दी चल रहे हैं। अब जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होगा उनको तो लग रहा होगा बर्डन, इतने सारे हो गए। अब आप ये नोट कर लो, यहां तक जो है वो सीरियल वाइज है, यहां तक सीरियल वाइज है, यहां तक सीरियल वाइज हमने पूरी कर ली है मुहारनी। इसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो सीरियल वाइज नहीं है, इनकी लाइंस हम नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, हरी अप, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू नोट इट डाउन। हो गया? किस किसने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया? किस किसने? स्टिल राइटिंग? जल्दी जल्दी करो, जल्दी। 30 seconds मोर, ओनली 30 seconds विल बी गिवन। उसके बाद हमने नए नए शब्द भी तो बनाने हैं इन अक्षरों से जो आज सीखे हैं। देखो कितनी सारी मुहारनी कंप्लीट कर ली है। अच्छा, बाई चांस अगर कुछ स्किप हो जाता है, कुछ मिस हो जाता है, तो कैंप का वीडियो तो आपके चैनल पे अपलोड हो ही जाएगा। आपने चैनल पे जाके दोबारा उस वीडियो को देख लेना। और होमवर्क कंप्लीट करना इज मस्ट। आज भी मैं कह रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुई। 8 lessons have been completed, so you have to complete your homework by heart and soul। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, पेरेंट्स घर में पंजाबी बोलनी शुरू करें। पेरेंट्स ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ, आई एम इरेजिंग द बोर्ड। अगर मिस हो गया तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, और होमवर्क कंप्लीट करना है ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ तो फिर क्लास ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, है ना। चलो ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਸੀਂ वर्ड्स ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਛਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਇਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਹਨ? ਅੱਖਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਰ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਅਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਛਾ,
जज्जा, जज्जा, ञञा, वव्वा, डड्डा। ए सीखे नसी, राइट। ञञा तो वर्ड्स उन्हें नहीं बनाएंगे ताकि तुसी कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो बाकी अखरां तो शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखांगा, तुसी मैनू दसना है, दसोगे? दसो ये की लिखा है, की लिखा है मैं? चैट बॉक्स पे दसो, लिखो की है। जल्दी जल्दी लिखो चैट बॉक्स पे। आज ही सीखा है असी अखर। केड़ा अखर है? छ। छछे नु होड़ा, ओ दी मात्रा। देखो हिंदी में लिखांगे छ, ओ की मात्रा, ट आ की मात्रा। की बनया? छोटा। की बनया? छोटा। थोड़ी होर बोर्ड नु क्लियर कर दी, गोल कर दी। चलो लिखो। छोटा, ओके। असि छ तो ही पहले शब्द देख लिए, और केड़े केड़े ने। अच्छा, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, हिंदी में जिसको हम कहते हैं छेद, या फिर इंग्लिश में कहते हैं होल, उसको पंजाबी में कहते हैं छेक। पहले मैं हिंदी का लिख देता हूँ। छेद, कपड़े में छेद हो गया है। छ, ए की मात्रा द, छेद। इसको पंजाबी में छेद, छेद नु किवें प्रोनाउंस करांगे, किवें बोलांगे? छेक, छेक। छ, ए की मात्रा क, छेक। ठीक है। छ के बाद हमने सीखा ज। ज से मैं एक छोटा सा वर्ड लिखता हूं पहले। ये सबको पता होना चाहिए मैंने क्या लिखा है। चैट पहले मैं देखूं आपके एनेबल है या नहीं। चैट में लिख सकते हो? एक बार कोशिश करो लिखने की। मुझे बता दो, चैट में लिख सकते हो या नहीं? डू मुन्नी? नहीं लिख सकते, ओके। शैतानी करते हो ना आप लोग, मिस यूज करते हो चैट्स का, तभी होस्ट जी ने चैट्स ही बंद कर दिए। करो अब सफर। सफर कौन सा करेंगे? हमें हिंदी वाला सफर, जैसे यहाँ से दिल्ली से पंजाब का सफर, या हम इंग्लिश वाला सफर करेंगे, SUFFER? तड़पो अब बैठ के। नहीं कर सकते तो देखेंगे ये क्या लिखा है। आपको पढ़ना आ रहा है वैसे? मुझे बिना चैट्स के बता दो, मुन्नी करके बता दो, पढ़ना आ रहा है ये? वेरी गुड। क्या लिखा है बोलो, मैं लिपसिंग पढ़ लूंगा आपका। जादू, जादू, वेरी गुड। ज, जज्जा ज, कन्ना आ, द और बड़े ओ की मात्रा, जादू, जादू। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमने और कौन कौन से सीखे आज शब्द। देखिए, ज के ऊपर लग गई है टिप्पी और ग, ज के ऊपर लग गई चांद बिंदी और ग, तो क्या बन गया ये? जंग, जंग, वॉर, बैटल, जंग। उसके बाद हम एक और बनाते हैं। आप बताएं ये क्या लिखा है, आप भी तो कोशिश करें अब।
कोशिश करो की लिखिया है। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜ ए की मात्रा ठ, जेठ। जेठ एक तो होते हैं हस्बैंड के बड़े भाई, यानी आपकी मम्मा के लिए जेठ होंगे आपके ताऊ जी। और दूसरा जेठ का मतलब होता है बड़ा, पंजाबी में जेठ का मतलब होता है बड़ा। ऐसी जो बड़ा बेटा होता था उसका नाम रख देते थे जेठा। ठीक है, तो जेठ मीन्स बड़ा। आप ब्रैकेट में इसके मीनिंग्स लिख सकते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो ट्रांसलेट करते हुए। जेठ मीन्स वड्डा। अच्छा, अब एक ऐसा शब्द बनाएंगे जिसमें ज और ज, छ हो गया, ज और ज दोनों आए, ऐसा शब्द बनाते हैं। क्या लिखा है बताओ, आप बताएंगे, बताओ बताओ बताओ। जहाज, जहाज नहीं है, जहाज, जहाज, जहाज। हरी अप, नोट इट डाउन। ज से कुछ और शब्द भी करेंगे हम, उसके बाद व और ड से करने, ठीक है। ये शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ना है हमने। क्या लिखा है, जख्म, जख्म। जबकि अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो आधा ख आएगा, जख्म। पर हमने सीखा था पंजाबी में आधा अक्षर नहीं होता है ना, और अधक सिर्फ वहीं लगेगी जहां पे किसी शब्द को जोर देना होगा। तो ये जख्म को पंजाबी में हम पूरे अक्षर के साथ प्रोनाउंस करेंगे, जख्म, जख्म। ठीक है, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। अब आप बताएं ये क्या लिखा है मैंने, जल्दी दसो, बताएं मतलब दसो, तुसी दसो। वेरी गुड। जरूरी नहीं है पर जरूरी है, ज, ज है, जरूरी, जरूरी है पढ़ाई करनी बड़ी, जरूरी। ठीक है। अच्छा, मैं मेरे नाम के पीछे एक वर्ड लगता है, केड़ा वर्ड है, जल्दी देखो मेरी स्क्रीन पे की लिखा है, गगनदीप सिंह। अगे की लिखा है, जरखेज, जरखेज। चलो जरखेज बना लेंगे हैं। ज र खेज, जरखेज, जरखेज। ठीक है, इस तरह तुसी अपने अपने नाम भी लिख सकते हो, जिन्हां जिन्हां नूं जो जो शब्द आ गए हैं। जे अखर कराए हैं और तुहाडा नाम बन रहा है ते तुसी लिख सकते हो। ठीक है, जरखेज बन रहा है इस विच। नेक्स्ट हुण असीं देखांगे वव्वा ते डड्डा नाल। नेक्स्ट असीं की करांगे, वेखांगे। देखो असीं वही लिख दिता, वेखांगे। की करांगे, वेखांगे मतलब देखेंगे। नेक्स्ट असीं वेखांगे, देखेंगे, वेखांगे, वेखांगे।
अगला देखो, अगला शब्द की है, आपे ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। की लिखा है, पढ़न की कोशिश करो, आपे पढ़ो की लिखा है। द व आ ईडी नु बड़ी दी मात्रा, दवाई, दवाई। ठीक है, हुन ए पढ़ो तुसी। ए की लिखा है, ए है डड्डा, ड, डड्डा, ड की साउंड दे रहा है। डा किया, डाकिया, डाकिया डाक लाया, असी पोएम पढ़ी हुई है ना, ए वही डाकिया है, उन्हें डाक लेके आएगा। थोड़ा छोटा लिखा क्योंकि अगे हिंदी विच भी लिखना है। तुसी अपनी तरफों भी नए नए शब्द बनाने की कोशिश करया करो। डाकिया, अच्छा हिंदी में डाकिया लिखेंगे तो क को छोटी ही आनी चाहिए, ये सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, डाकिया। शिव जी की बजांदे हुंदे सी? की बजांदे सी? डमरू, डमरू। ठीक है, और असी की कह रहे हैं, शैतानियां छड्डो ते पढ़ाई करो। छड्डो, अब देखो छड्डो में आधा ड की जरूरत है तो अद्धक डल जाएगी। छड्डो, छड्डो। ते तुसी ये सारे शब्द नोट डाउन कर लो। अच्छा, तुसी देखोगे कि वीर जी ने तो होर भी बड़े सारे शब्द कराए सन लैसन्स विच, जेडी यूट्यूब दी वीडियोस भेजियां। इधर असी थोड़े घट शब्द करांदे हैं, थोड़े कम शब्द करते हैं हम क्लास में, पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना नहीं और दो दो लेसन्स करने हैं। इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूँ, होमवर्क इसीलिए दिया जाता है ताकि आप जो और शब्द सीखे हैं उस होमवर्क की वीडियो में, जो और शब्द सीखे हैं, जो और एक्सप्लेनेशन है, आप वो आराम से पढ़ सको, देख सको। आज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो काफी सारे बच्चों ने देखी हैं वीडियोस, काफी सारे शिक्षार्थियों ने, बट जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज टाइम निकाल कर देखिए और अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए ताकि आप पंजाबी सीखने में थोड़ा आगे बढ़ सकें और वो भी जल्दी। ठीक है, तो सब अपना होमवर्क करेंगे या नहीं? सब हाथ हिला देते हैं, अभी सबके सेल तेज हो जाते हैं गर्दन। होमवर्क करते हैं फिर नहीं यार, अरे यार आज रहने देते हैं, कल कर ले, और बस रहने देते हैं। जड़ा है ना, यूटिलाइज नहीं हो पाता टाइम, ਤੇ ਅਸੀਂ टाइम ਨੂੰ यूटिलाइज करना है, ज्यादा तो ज्यादा सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं पूरा साल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं आना, यही सिर्फ 10-15 दिन है ਅਸੀਂ ਨਾਲ। 6th डे तो आज हो गया, देखते हैं अब बाकी 6-7 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, वाहिगुरु जी क्या कराएंगे। तो आपने सबने एक ही तो काम कहा है आपको, होमवर्क की जो वीडियोस आती हैं वो देखना है और दूसरा सिमरन करना है बस। सिमरन किस किसने किया था कल? हमने कहा था 5-6 मिनट सिमरन करना है। किस किसने मेडिटेशन करी थी आज? झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, वाहिगुरु जी सब देख रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये हेड कवर्स, फिर हेड कवर से एलर्जी हो गई लोगों को और उन्होंने उतार के फेंक दिए, दूर कर दिए, तिलांजलि दे दी। फिर मैं नाम लूंगा तो कहेंगे हमारा नाम ले लिया। देखना, औरों के भी तो हेड अनकवर्ड थे, मेरे को तो जो स्क्रीन पे आ रहा है मैं उसी का नाम लूंगा ना। गो ग्रैब योर स्कार्फ्स, इट्स अ गुड हैबिट, हेड कवर होने चाहिए साढ़े। लिख लिया आपने शब्द? जल्दी बताएं मुझे, पढ़ पा रहे हैं? एक और बार मैं पढ़ूंगा, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। छ ओ की मात्रा, ट आ की मात्रा, पर पंजाबी विच पढ़न की कोशिश करांगे। छच्छे नु होड़ा, टैंका ते कन्ना, छोटा। छच्छे नु लां, दद्दा छेद। छच्छे नु लां, कक्का छेक। जज्जे नु कन्ना जा, दद्दा दुलैंकड़े दू, जादू। मेरे नाल नाल पढ़ो।
जज्जा टिप्पी गग्गा जंग, जज्जा ला ठट्ठा जेठ, जज्जा हाहा कन्ना जहा, जज्जा जहाज, जहाज, जज्जा खखा मम्मा जखम, जख्म नहीं पढ़ना है इसमें, जखम, क्योंकि अद्धा अक्षर नहीं हुंदा पंजाबी विच। जज्जा रारे नु दुलैंकड़े, रारे नु बिहारी, जरूरी, जज्जा रारा खखा लां जज्जा जरखेज, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰਖੇਜ਼, वव्वा लां वे, खखा कन्ना बिंदी खां वेखां, गग्गा नु लांगे ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਜੀ ਫॉर ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦੱਦਾ ਵੱਵਾ ਕੰਨਾ ਦਵਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦਵਾਈ, ਦਵਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਕੀ, ਐੜਾ ਕੰਨਾ ਡਾਕੀਆ, डाकिया। तुसी भी इस तरह बोलन की कोशिश करनी है, ठीक है? समझ आई ये लाइन? मैंने पंजाबी में क्या बोला? तुसी भी इस तरह पढ़न की कोशिश करनी है। समझ आई ये लाइन? तुसी मतलब आपको, आपको भी ऐसे पढ़ने की कोशिश करनी है। डड्डा मम्मा डम, रारा दुलैंकड़, डमरू डमरू, छच्छा अद्दक डड्डा होड़ा छड्डो, शैतानियां छड्डो, आलस छड्डो ते होमवर्क करो। क्या है? आलस छड्डो ते करना कि असी होमवर्क खांगे, ठीक है? सारे करनगे आज दा होमवर्क? जल्दी दसो कौन कौन करेगा, कौन कौन करेगा होमवर्क, कौन कौन कंप्लीट करेगा? वेरी गुड। आज असी तुहानू देंगे लेसन नंबर 9 एंड लेसन नंबर 10, ठीक है? उस विच असी नवे नवे अखर सिखांगे, न्यू न्यू अक्षर, और फिर उन्हां तो बनते हुए नवे नवे शब्द सिखांगे, ठीक है? और फिर असी कल मिलांगे। किन्ने मिनट सिमरन करके कल मिलांगे? किन्ने मिनट सिमरन करोगे? जल्दी दसो, इशारा करके दसो। 5 मिनट्स। 5 तो ज्यादा भी कर सकते हैं, बट घट्टो घट 5 मिनट्स तो करनी ही कर, ठीक है? ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼। पेरेंट्स ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ 2-3 ਮਿੰਟ। जिन्हां बच्चों के पेरेंट्स कोल बैठे हैं, जिस जिस बच्चे के भी पेरेंट्स पास में बैठे, सब उनके आगे कैमरा कर दो। जल्दी 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 अपने पेरेंट्स के आगे कैमरा करो, तो आज तो वीर जी ने आपकी क्लास लेनी है। यू हैव 20 सेकेंड्स ओनली पेरेंट्स को बुलाने के लिए। जल्दी, जो बुलाएगा वो तो जीत जाएगा। आज मैं देखता हूँ किस किस के पेरेंट्स आ रहे हैं। पेरेंट्स का सिर्फ हाथ नहीं चाहिए, पूरे पेरेंट्स चाहिए मुझे। पूरे पूरे पेरेंट्स आ जाएं आज। पेरेंट्स भी पूरे शैतान हो रहे हैं, है ना? सिर्फ हाथ आगे कर रहे हैं, आधे वो फेस पर कैमरा ही नहीं ला रहे हैं। ये तो बड़े ही ओवर स्मार्ट पेरेंट्स हैं हमारे पास, तभी इतने स्मार्ट बच्चे हैं इनके। हाँ जी डियर पेरेंट्स, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ले, ये मेरे बच्चों ने पेरेंट्स को सिखाया ही नहीं कि यस नो कैसे करना होता है। सर की मुन्नी बनना होता है यस नो करने के लिए। पेरेंट्स को आवाज आ रही है? प्यारे बच्चों, पेरेंट्स की ना बैटरी वीक है, सर के घर से ले जाना, ठीक है? आज सर को कह देना सर बैटरीज भिजवा दो, पेरेंट्स की वीक हो गई हैं। हाँ जी डियर पेरेंट्स, आवाज आ रही है? आ रही है। सो पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट से पहले आओ हम सब फतेह बुला लेते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डियर पेरेंट्स, हम सब बच्चे सीख रहे हैं, कुछ पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, इवन मैं भी सीख रहा हूँ। नाम ही सीख पड़ गया है ना, सीखे ही जा रहे हैं, मरते दम तक सीखते ही रहना है कुछ ना कुछ। तो अब आज मैंने आपको इसीलिए बुलाया है। आपने क्या करना है,
ये जो बच्चों के लेसन्स हो रहे हैं रोज, जो पेरेंट्स सीख रहे हैं वेल एंड गुड, वो तो सिंसियर होंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो वो भी सिंसियर होने, तो डांट उनको भी पड़ेगी। तो ये जो लेसन्स हैं, जो रोज के रोज लेसन्स हो रहे हैं, इसका वीडियो जो है जी फॉर ग्रैटिट्यूड चैनल पे डल जाता है। अगर बच्चों का कुछ मिस हो जाता है इन केस, तो आप वो वीडियो उनको दोबारा दिखा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज हम 8 लेसन्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पंजाबी वर्णमाला इज कंप्लीट, ठीक है, आधी से ज्यादा वर्णमाला पंजाबी की कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अपने बच्चों को सिंसियरली होमवर्क करवाना है, क्योंकि अगर आज होमवर्क नहीं करेंगे, मतलब आज से, तो वो पीछे ही होते जाएंगे, फिर आपको भी लगेगा कैंप अटेंड करना यूजलेस था, कुछ आया तो है नहीं बच्चे को। तो आपने क्या करना है, ग्रुप्स में होमवर्क शेयर होता है, आपने होमवर्क जरूर करवाना है बच्चों को। आज भी 2 वीडियोस आएंगी, तो आपने वो 2 वीडियोस करानी, ठीक है। कौन कौन से पेरेंट्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो होमवर्क करवाएंगे? अच्छा, पेरेंट्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, यानी बैटरीज ठीक है बच्चों, टेंशन मत लेना, बैटरीज ठीक है पेरेंट्स की। अच्छा, वेरी गुड, तो होमवर्क करवाना है। अब सिख पेरेंट्स जितने हैं, अब ये उनके लिए रिक्वेस्ट है, जितने सिख पेरेंट्स हैं, कि ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਟੌਡਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਬੋਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ? ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਧਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਹੈ ਐਸੀ ਮਾਂ, ਹਨਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਸਨਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਅਰ ਪੇਰੈਂट्स। समझ आई दूसरी गल? वेरी गुड, ओके, सानू समझ आ गई है दूसरी गल। हुन बस यही 2 काम ने, आप लोग के पास 2 काम है पेरेंट्स के पास। पहला कि आपने होमवर्क कंप्लीट करवाना है बच्चों को, नहीं तो वो पंजाबी सीखने में पीछे रह जाएंगे, फिर आप ऐसी पछतावा करते रहेंगे कि क्या इतना समर कैंप में टाइम भी वेस्ट किया और आया तो इन्हें कुछ भी नहीं। पहला काम होमवर्क करवाना है कंप्लीट, दूसरा काम आपने पंजाबी में बात करनी शुरू करनी है, ताकि बच्चे पंजाबी में ही उत्तर देना सीखें और पंजाबी बोलनी भी सीख जाएंगे, ठीक है पेरेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी क्लास का रूल है, बच्चों को कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करवानी, 5 मिनट कम से कम बैठ के, उनको बैठने की आदत डालनी है। बच्चों में कुछ ज्यादा ही सेल लगे होते हैं ना भागने वाले, आपने बैठने की आदत डाल, एक कमरे में उनको बिठा दीजिए, 5 मिनट का अलार्म लगा के मोबाइल फोन पास में रख दीजिए, बच्चा आराम से हाथ जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु करेगा। आज हम पेरेंट्स को भी करवा लेते हैं मेडिटेशन, ताकि उन्हें समझ आए कि उन्हें खुद भी करनी है। पेरेंट्स करेंगे तभी तो बच्चे करेंगे। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि बच्चे जो है वो बंदर होते हैं, और बंदरों को हम क्या कहते हैं, नकलची, नकलची बंदर। वो हमने बचपन में वो स्टोरी भी सुनी है कि उसकी टोपी वाले की, वो बंदर टोपियां ले जाते हैं, वो टोपी कैसे वापस लेता है, अपनी टोपी उतार के फेंकता है, तो बंदर सारी टोपी फेंक देता है। अगर हम चाह रहे हैं बच्चे अच्छे बने, तो हमें अच्छा बन के दिखाना होगा उनको, बस वो चीट कर लेंगे, बहुत अच्छी नकल करते हैं बच्चे, तो हमें मेडिटेशन करनी होगी ताकि वो करें। चलो आओ 5-6 बार वाहिगुरु सिमरन करते हैं और उसके बाद हम क्लास को विदाईगी लेंगे। जॉइन योर हैंड्स एवरीवन, सब पेरेंट्स भी, सब बच्चे भी अपने हाथ जोड़ लेंगे
और रोज का ये नियम बनाना है कि कम से कम 5 मिनट सिमरन, वाहिगुरु सिमरन करना ही करना है। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ऐसे रोज हमें कम से कम 5 मिनट्स मेडिटेशन करनी ही करनी है। ऐसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सारी डिप्रेशन, नेगेटिविटी सब दूर होते जाएंगे और हम खुश पॉजिटिविटी फील करना शुरू करेंगे। ठीक है, कौन कौन पेरेंट्स और कौन कौन बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे सिमरन करने की 5 मिनट्स रोज? वेरी गुड। कुछ पेरेंट्स तो इतने एक्टिव हैं, इतना पास कैमरे के हाथ रख लिया, मुझे लग रहा है मेरे ही कैमरा से बाहर आ जाएगा। सो एक्टिव। थैंक यू डियर पेरेंट्स। चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आपने होमवर्क कंप्लीट करना है और मेडिटेशन जरूर करनी है। ओके, कल मिलेंगे न्यू लेसन के साथ खूब जोश के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हमेशा खुश रहो, वाहिगुरु सिमरन करते रहो।